Okay, so in last video we have discussed about Prim's algorithm. Now let's start with Kruskal algorithm. But before starting that, again I'll repeat, means the previous concept, that is spanning tree and Prim's algorithm, is very well clear to all of you. So with the same consideration, let's start with Kruskal's algorithm. Okay? So means, as a drawback which we have faced in Prim's algorithm, means that we have to follow only the chained part, we have to follow only the train concept, means we have to flow in the connected format only. This was one of the drawback which was faced in Prim's algorithm, as we discussed in previous video. But in this case, means in Kruskal's case, it is not like that. Means compulsorily we don't have to follow the chained format. We are also allowed to select the random age with respect to the minimum cost. ठीक है, मीन्स जिस तरीके से हमें पूरा कंटिन्यूअस फॉर्मेट में प्रिम्स एल्गोरिथम में काम करना पड़ता था, वैसे इस केस में नहीं है, क्रुस्कल्स में ऐसा नहीं है. सो लेट्स नॉट गेट टू मच इन्वॉल्व इन द डिस्कशन, लेट्स डायरेक्टली स्टार्ट विद द एग्जांपल. ठीक है, so this is a given graph, the same graph it is as I have which I have used in the Prim's algorithm as well. ठीक है, so now with the all available edges we have to find the least cost edge. ठीक है, इन सारे एजेस में से सबसे लीस्ट कॉस्ट वाला जो एज है वो हमें फाइंड करना है. ठीक है, सो इन कंपैरिजन ऑफ ऑल ऑफ दिस एज वी फाइंड दैट edge 1 to 6 is the least count, is the minimum cost edge as compared to all of the available edges. ठीक है, so let's involve it, that is 1 to 6. ठीक है, so ये हमने edge यहाँ पे ऐड कर लिया with the cost that is 10. ठीक है, so now the next smallest edge means in comparison with all of them, means except the visited one. अभी हमारा 1 to 6 that is the cost of 10, ये वाला विजिट हो चुका है, so we don't have to again focus with that one. We have to search for the next smallest one. ठीक है, अभी इन अवेलेबल नोड्स, इन अवेलेबल एजेस में से स्मॉलेस्ट वन कौन सा है, मींस 28, 25, 24, 14, 16, 18, 22. So here we find that is 3 to 4 is the smallest one. So let's include it in our solution. ठीक है, 3 to 4 मीन्स हमने यहाँ पे इंक्लूड कर लिया 3 to 4. लेट्स इंक्लूड दिस वन. ठीक है, सो नेक्स्ट स्मॉलेस्ट दैट इज वी हैव 14. ठीक है, 12 के बाद है 14, सो विल इंक्लूड दैट इज 2 to 7. हमने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया विद द कॉस्ट ऑफ 14, ये वाला था 12. लेट्स इंक्लूड. ठीक है, फिर 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया. उसके बाद का स्मॉलेस्ट है, उसके बाद का नेक्स्ट दैट इज 16, यहाँ पे 16 हो जाएगा. उसके बाद का है, उसके बाद आएगा फिर 18. ठीक है, 18 दैट इज 4 to 7. लेकिन द थिंग विच वी हैव टू टेक केयर हियर इज दैट इफ आई टेक 4 to 7, ठीक है, विच इज द नेक्स्ट स्मॉलेस्ट 4 to 7 दैट इज 18. अगर मैं लेता हूं 4 to 7, it will create a cycle which is not actually allowed in any of the tree. अगर ये cycle create कर रहा है, so it will not be considered a tree. और हमारा requirement क्या है, to create a tree which is not allowed to create a cycle. So 4 to 7 that is 18, this is not allowed. So let's not involve it in our solution. It will be discarded directly. ठीक है, क्यों? क्योंकि वो एक cycle create कर रहा है. And the thing which we have to take care, that is the tree should be acyclic. It should not be cyclic. It should be acyclic. Okay, so ये वाला डिस्कार्ड हो गया. ठीक है, 18 के बाद का नेक्स्ट है फिर हमारा, फिर अवेलेबल कौन से 18 के बाद के 22, 24, 25, 28. ठीक है, सो इसमें सबसे मिनिमम कौन सा है, 4 to 5 दैट इज 22. तो 4 to 5 यहाँ पे ले लिया हमने ऑफ द कॉस्ट 22. ठीक है, उसके बाद अवेलेबल कौन से हैं, 25, 24, 28. इन तीनों में से मिनिमम कौन सा है, 24 है. 5 to 7, अगर देखा 5 to 7 अगेन अगर मैं क्रिएट करता हूं, इट इज क्रिएटिंग अ साइकिल विच इज एक्चुअली नॉट अलाउड. सो लेट्स नॉट इन्वॉल्व इट इनटू आवर सॉल्यूशन, डिस्कार्ड इट, क्योंकि वो एक साइकिल क्रिएट कर रहा है. ठीक है, सो 24 यहाँ पे 5 to 7 वाला इट इज नॉट अलाउड, फिर 24 भी डिस्कार्ड हो गया. अभी बचा कौन सा, 25 और 28, ये वाले दो एज बचे. ठीक है, सो इनमें से मिनिमम कौन सा है, 25 विच इज गोइंग फ्रॉम 5 to 6, मींस 5 to 6 हमें यहाँ पे एक एज मिल जाएगा विद द कॉस्ट ऑफ 25. ठीक है, उसके बाद बचा ये एज
अभी ये भी नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि इट इज क्रिएटिंग अ साइकिल, ठीक है। तो रूल क्या था? एज दैट इट वाज इन प्रिम्स एल्गोरिथम, सेम थिंग इज हियर एज वेल, मींस whatever the number of nodes are available here, all the nodes should get visited, all the nodes should get executed. ऐसा एक भी नोड नहीं चाहिए कि जो विजिट नहीं हुआ, जो इंप्लीमेंट नहीं हुआ, ठीक है। अगर ऐसा हो रहा है तो इट इज इनकम्प्लीट सॉल्यूशन, ठीक है। मींस यहाँ पे देख लो ग्राफ में कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 नोड्स वर देयर। Similarly 1 2 3 4 5 6 and 7, all 7 nodes have been executed here, all 7 nodes are visited at least once here, ठीक है। अभी ये जो एजेस क्रिएशन का जो हमने काम किया, अब ये शुरुआत तो हमने कर दिया मिनिमम वाले तक, ठीक है। अब ये कब तक करना है? हाउ मेनी नंबर ऑफ एजेस शुड बी देयर इन एनी स्पैनिंग ट्री, ठीक है। सो इसके लिए वी हैव व्हाटएवर द नंबर ऑफ नोड्स आर देयर, द नंबर ऑफ नोड्स -1 will be the edges of that, ठीक है। in this example number of nodes we have, that is 7 - 1, so edges will be 6, तो 6 नंबर ऑफ एजेस यहाँ पे होने चाहिए। है क्या हमारे पास? 1 2 3 4 5 and 6, तो 6 number of edges will be there. So similarly this is and the same thing is also repeated in Prim's algorithm as well, ठीक है। अभी ये जो दो एल्गोरिदम है जो मिनिमम कॉस्ट फाइंडिंग के है, स्पैनिंग ट्री के दो एल्गोरिदम अलग अलग मिनिमम कॉस्ट फाइंड करने के, इनमें कॉमन चीज ये है कि प्रिम्स एल्गोरिदम एंड क्रुस्कल एल्गोरिदम, दिस बोथ आर वेरी मच सुटेबल विथ अनडिरेक्टेड ग्राफ, ठीक है। अनडिरेक्टेड ग्राफ मींस व्हाट? देयर इज नो स्पेसिफिक डायरेक्शन गिवन कि मींस सपोज ये 6 कहां पे जा रहा है, 1 की तरफ जा रहा है कि 5 की तरफ जा रहा है। सो इन दोनों की कॉमन चीज ये है कि दिस बोथ एल्गोरिदम आर मोस्ट सुटेबल इन अनडिरेक्टेड ग्राफ, ठीक है। सो आई होप इट इज वेरी वेल क्लियर, and the previous topics which we have discussed, that is spanning tree and Prim's algorithm, all these things are very well clear, then only we can easily proceed with the spanning tree creation, okay. So this was all about the spanning tree creation with the help of Kruskal's minimum cost finding algorithm with respect to spanning tree, okay. So that's all for Kruskal algorithm, okay. Thank you.